Good morning to everyone. So this is the sum we will do now. Sampada Limited was formed with a capital of rupees 20 lakhs divided into 2 lakh equity shares of rupees 10 each. So Sampada Limited has 2 lakh equity shares of 10 each which has to be sold. All the shares were issued to public for subscription. The issue was underwritten as follows. So will Ajay, there are three subscribers, Ajay, Bijoy and Rajat. Ajay will sell, Ajay has to sell 80,000 shares, Bijoy 60,000 and Rajat 60,000 shares. Marked applications. What do you mean by marked applications? Marked applications bear the stamp of the specific underwriter. So marked application in favor which bear the stamp of Ajay with 32,000 shares, with marked application with the stamp of Bijoy was 58,000 shares and Rajat 42,000 shares. Applications for 30,000 shares were not marked. मतलब 32,000 shares were unmarked applications. So unmarked applications को क्या करना है? That कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? That is given in this question. Let us read. Prepare a statement showing net liability of each underwriter. Each underwriter का net liability क्या है हमें find करना है. Unmarked applications are to be distributed among the underwriters in the ratio of their gross liability. So gross liability में unmarked application को divide करना है. So now let us start. नेट लाइबिलिटी या क्या बोलेंगे हम, लाइबिलिटी ऑफ underwriters. So now how many columns we want? बेसिस के लिए एक कॉलम चाहिए, पर्टिकुलर के लिए, बेसिस के लिए एंड 3 अंडरराइटर्स के लिए. So let us adjust the column for shares, underwriter for number of shares. So particulars, basis, what is the name? Name of individual underwriter Ajay, Bijoy and Rajat. So now what we will do, we will start from gross liability. Gross liability. Gross liability, is it given how many shares each underwriter has to sell? Yes, it is given that Ajay has to sell 80,000, Bijoy 60,000 and Rajat 60,000. So zeros cut करेंगे तो what will be the ratio? 8:6:6. इसको और छोटा कर सकते हैं. 2 के टेबल में ये आता है 8 है, 2 4s are, 6 है, 2 3s are and this is also 6 is 3s are. तो 80 में 8 2 4s are में आता है. 4 zeros कैंसिल कर दिया. If you want to divide the gross liability, we can do it from here also. What is the amount? 80,000, 60,000 and 60,000. क्या रेशो आता है? इसको और छोटा जीरोस कम करेंगे तो ये 6 ऐसे आता है. और छोटा करना है तो ये 2 के टेबल में 4s are, 6 2 3s are, 6 2 3s are, 4:3:3 का रेशो आता है. अब इसमें से हमें क्या लेस करना है? इसमें से हमें लेस करना है marked applications which is given. Marked applications of each underwriter is given. So accordingly we will write. So mark कितना, अजय ने कितना शेयर्स जिसमें उसका खुद का स्टैम्प है. इट इज अजय फॉर 32,000, Bijoy for 58,000 and Rajat for
42,000. Now what is the balance? Now what is the balance? Balance 80 में से 32 minus करो. You will get 48,000. If you want, you can just minus करना है तो to show that it's minus हम उसको ब्रैकेट में भी बता सकते हैं मार्क्ड एप्लीकेशंस को कि 60 में 58 सेल हो गया. 60 में रजत ने 42 सेल किया, which the shares which bear the name of Ajay, Bijoy and Rajat are marked applications. Now ये माइनस करो कितना आ रहा है. 60 में से 58,000 माइनस किया 2,000. 60 में से 42,000 माइनस किया, it is coming 18,000. Now इसमें से हम क्या करेंगे, हम इसमें से अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करेंगे. Unmarked application do not bear the stamp of individual underwriter. Now here they have told unmarked application को कौन से रेशो में डिवाइड करना है, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में. सो रेशो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी का क्या रेशो है हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है. इट इज 4:3:3. So, but how much is the unmarked application? वो तो हमें मालूम होना चाहिए. Unmarked applications कितना है? Unmarked application find out करते हैं. Because directly not given. Is it given directly? Yes. तो हमें find out करने का जरूरत नहीं है. Because applications of 30,000 were not marked, ऐसे दिया हुआ है. So I will not, when it is given, why the need to find out? So unmarked application को ये रेशो में 4:3:3, that is 4/10, 3/10 and 3/10 में 30,000 को डिवाइड करो. कितना आ रहा है? 30,000 into 4/10 करो. How much you are getting? 12,000. 30,000 into 3/10 करो. How much you are getting? 30,000 into 3/10 करो. You are getting this. Now what we will get? See the balance. What we will get कितना है? 48,000 में से 12,000 गया, तो अभी भी अजय को 36,000 सेल करना है. बट दिस वन फॉर बिजॉय उसको 2,000 ही सेल करना था, उसने 9,000 कर लिया, तो इट इज अ नेगेटिव फिगर. एंड 9,000 हियर, 18,000 में से 9,000 माइनस किया तो वी गेट 9,000. दिस इज द बैलेंस. अब किसी भी अंडर राइटर का अगर नेगेटिव अमाउंट आता है, तो बैलेंस अगर नेगेटिव आता है तो वो हम बैलेंस को, मतलब उसका बैलेंस मतलब उसने एक्स्ट्रा सेल किया, तो वो क्रेडिट को हम एडजस्ट करेंगे. क्रेडिट ऑफ बिजॉय एडजस्टेड. बिजॉय एडजस्टेड कौन से रेशो में करते हैं? देखो ग्रॉस में ही बिजॉय का अगर शेयर छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, ये 3 निकाल देंगे तो अजय का 3 शेयर है, रजत का 3 शेयर है, तो इसमें एडजस्ट करो, एडजस्ट इन दिस रेशो. तो 7,000 को 4:3 रेशो में डिवाइड करो, तो इधर आ जाएगा 4,000 और इधर आ जाएगा, रजत में आ जाएगा 3,000. एंड ये 7,000 को हमने डिवाइड कर दिया, तो अभी व्हाट वी गेट इज द नेट लाइबिलिटी. नेट लाइबिलिटी क्या आया? 36,000 में से 4,000 गया, ये नील है, एंड 9,000 में से 3,000 गया, तो इट इज 6,000. So we got the net liability. With this sum is done. Next, now we will do this sum. A public limited company with a capital of rupees 10 lakh divided into equity shares of rupees 10 each. So there is a public limited company
whose capital is rupees 10 lakh and it is divided into equity shares of rupees 10 each. So 10 lakh divided by 10, we will get 1 lakh shares. So places its entire issue under market and the whole issue has been underwritten as follows. So ये underwriters को ये जितना भी issue है 1 लाख shares sell करना है तो पैटरसन एंड कंपनी को 30,000 अंडरराइट करने को दिया है. देन वी हैव सिंह एंड कंपनी, उसको 35,000 शेयर्स दिया है. एंड देन देयर इज मजूमदार एंड कंपनी, उसको 10,000 शेयर्स दिया है. एंड देयर इज प्राइस एंड कंपनी, उसको 15,000 शेयर्स का सेल करने के लिए दिया है. दे हैव बीन अपॉइंटेड एज द अंडरराइटर. देयर इज तालुकदार कंपनी हु हैज टू सेल 2,000 शेयर्स. देयर इज बैनर्जी एंड कंपनी हु हैज टू सेल 8,000 shares. So there are almost, when we total all the underwriters, there are 6 underwriters. In this question, there are 6 underwriters. All marked applications are to go in relief of the liability of the underwriter whose name they है ये, they bear. Marked applications bear the name of the underwriter. So whose name they bear, the applications received on the forms marked by the underwriters are Peterson and Company का नाम 25,000 shares में है, that they are the underwriters. Singh and Company 23,500, Majumdar and Company 6,500, Price and Company 1,000, Talukdar and Company 2,000, Banerjee and Company 7,000. So applications for 20,000 equity shares are received on unmarked application forms. Calculate, see unmarked कितना है वो भी क्वेश्चन में दिया है. Unmarked applications कितना है given in the question. 20,000 unmarked applications है. Calculate the liability of the individual underwriter. In terms of the underwriting agreement, the relevant proportion is to be ascertained not in terms of the original liability ratio, but after giving credit for marked forms. See, this one is important. The underwriting agreement said that normally जो relevant proportion जो है is to be ascertained not in terms of original liability ratio, मतलब gross liability ratio में नहीं डिवाइड करना है, but marked applications को करने के बाद जो बचा हुआ रेशो है, that is after giving credit for marked forms, उसके बाद जो बचा हुआ रेशो है, that is called as balance ratio. हम unmarked applications को balance ratio में डिवाइड करेंगे. हमारे पास जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 20,000 शेयर्स, उसको हम बैलेंस रेशो में डिवाइड करेंगे. उसको कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे? बैलेंस रेशो में. सो इससे पहले हमने एक जो सम किया था उसमें हमने अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो में डिवाइड किया था, ओरिजिनल लाइबिलिटी रेशो में डिवाइड किया था. अभी हम बैलेंस रेशो में डिवाइड करेंगे. सो लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, लेट अस कम लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. नाउ हाउ मेनी? 6 underwriters are there. So if we want, we will, because number of underwriters are more, हम एक टोटल का कॉलम भी बना लेते. बेसिस 1 2 3 4 5 6 and 7. So यहाँ पे पहला वाला है पर्टिकुलर्स. बेसिस, पर्टिकुलर्स को थोड़ा और बड़ा करते हैं. सो ये है बेसिस. फिर हमारे पास है, क्या नाम है? पैटरसन. नेम इज पैटरसन एंड कंपनी.
फिर हमारे पास है सिंह एंड कंपनी, फिर हमारे पास है मजूमदार एंड कंपनी, फिर हमारे पास है प्राइस एंड कंपनी, फिर हमारे पास है प्राइस के बाद ताल्लुकदार एंड कंपनी, फिर हमारे पास है बैनर्जी एंड कंपनी, फिर ये सबका टोटल. ओके, सो वी गॉट हियर. सबसे पहले वी विल राइट ग्रॉस लाइबिलिटी. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओरिजिनल लाइबिलिटी और ग्रॉस लाइबिलिटी. ये तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे इतना रेशो करने के लिए ये दिया हुआ है कि किसका कितना शेयर्स है. पैटरसन का 30,000, 35,000 सिंह एंड कंपनी का, मजूमदार का 10,000, दिस इज गिवन. प्राइस एंड कंपनी का 15,000, फिर 2,000 तालुकदार का एंड 8,000 बैनर्जी का. नाउ add all of this, you will get the total 30 plus 35 plus 10 plus 15 plus 2 plus 8. We should get 1 lakh. ये सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये सबको ऐड करेंगे तो हमें 1 लाख मिलेगा. इसमें से लेस करना है क्या, मार्क्ड एप्लीकेशन. मार्क्ड एप्लीकेशन ऑल्सो इज गिवन. मार्क्ड एप्लीकेशन ऑल्सो इज गिवन, करेक्ट. मार्क्ड एप्लीकेशन भी दिया हुआ है. सो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, पैटरसन का 25,000, सिंह का 23,500, फिर मजूमदार का 6,500. See what is given, marked application, application received under form marked by the underwriters. This is given. तो दिया हुआ है. फिर तालुकदार का कितना है, 2,000, फिर बैनर्जी का कितना है, 7,000. Now add all this, how much you are getting? Add all this, 25 plus 23,500 plus 6,500 plus 1,000 plus 2,000 plus 7,000. We are getting, yes, 65,000. ये 65,000 आ रहा है सबको ऐड करके. Are you getting 65,000? Just check. 25 plus 23,500, 23,500 plus 6,500 plus 1,000 plus 2,000 प्लस 7,000 इज 65,000. सो अभी जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा बैलेंस. अभी चाहिए तो ये सबको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये सब लेस किया है ना, तो लेस मतलब इट इज अ नेगेटिव फिगर. सो ब्रैकेट में बता रही हूँ मैं, आई एम शोइंग ऑल ऑफ दिस इन ब्रैकेट. And here bracket. So this is 65,000 marked application. Then it becomes easy कि हमें लेस करना. तो इधर माइनस करके कितना आता है, 5,000. इधर कितना आता है, माइनस करके 11,500. फिर इधर कितना आता है, 3,500. फिर इधर कितना आता है, 14,000. फिर इधर कितना आता है, नील.
इधर कितना आता है 1000, सबको ऐड किया तो इट इज कमिंग 35,000, या तो 1 लाख में से 65,000 माइनस करो, यू विल गेट द सेम आंसर. नाउ क्या करना है, वी हैव टू लेस unmarked application, unmarked applications. बट unmarked application कौन से रेशो में करने बोला है, बैलेंस रेशो में. unmarked application have to divided in बैलेंस रेशो. कौन से रेशो में डिवाइड करना है, बैलेंस रेशो में. तो बैलेंस रेशो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनमार्क्ड पता है 20,000 है, पर बैलेंस रेशो कैसे निकालेंगे, 5,000, दूसरा क्या है 11,000, 11,500, फिर 3,500, फिर 14,000, फिर 1,000. ये रेशो में डिवाइड करना है, ये रेशो में डिवाइड करना है. तो ये रेशो में कितना जीरोस कॉमन दिख रहा है, ये रेशो में 2 जीरोस कॉमन है, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 10. दो जीरोस कम किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सबको और छोटा भी कर सकते हैं 5 के टेबल में. और छोटा करना है या इसको ही ऐड करके रेशो करना है, इसको ही ऐड करके रेशो करना है, या 5 से डिवाइड करना है. सो 5 में 50 10,000 आता है ना, और 115 5 में कभी आता है 23,000. करो तुम लोगों ने ही कैसे किया, 5 के टेबल में 115 कौन से टाइम में आता है, डिवाइड करो 115 डिवाइड बाई 5, यू विल गेट 23. 35 तो हमें पता है ना 7,000 है. फिर सेम वे 140 करो, कितना 5 के टेबल में कितने में आता है, 28 में आता है. एंड 5 के टेबल में 10 कितने में आता है, 2,000. तो हमें बैलेंस रेशो मिल गया. अभी सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, डिवाइड किससे करना है, हमारा डिनोमिनेटर मिल जाएगा. 10 प्लस 23 प्लस 7 प्लस 28 प्लस 2 विच इज 70. सो इसका क्या रहेगा, ये अपने को क्या मिलेगा, इसका फ्रैक्शन कैसे मिलेगा, 10 डिवाइड बाई 70, ये किसके लिए, पीटरसन के लिए. और सेम वे हमें निकालना है सबका, सिर्फ डिवाइड बाई 70 करेंगे तो आंसर आ जाएगा. सिंह का आंसर कैसे आएगा, 23 डिवाइड बाई 70. और हमारे पास सिंह के बाद मजूमदार है, मजूमदार का है 7 डिवाइड बाई 70. फिर हमारे पास प्राइस है, प्राइस का है 28 डिवाइड बाई 70. फिर हमारे पास तालुकदार है, उनका है, एक मिनट मैंने कोई मिस आउट कर दिया, 23 7 28 एंड 2. हाँ, तालुकदार को तो कुछ नहीं देना है, उसका तो नील है. तालुकदार का हमने नहीं लिखा क्या, इधर कुछ है ही नहीं ना उसका बैलेंस रेशो, तो उसको तो कुछ नहीं दे पाएंगे. नॉर्मली हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन जब देते हैं तो रेशो के हिसाब से देते. फिर सिर्फ बैनर्जी है, बैनर्जी को हम कितना देंगे, बैनर्जी को हम 2 डिवाइड बाई 70. सी हियर वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस रेशो से निकाल रहे तो क्रेडिट का सवाल ही नहीं. अगर हम लोग ग्रॉस रेशो से निकालते हैं ना तो इस तालुकदार को भी कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन क्योंकि हम बैलेंस रेशो के हिसाब से निकाल रहे, तालुकदार को कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज नील, हिज बैलेंस इज नील ईयर.
गेटिंग माई पॉइंट। इससे पहले सम में जब हमने अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो से डिवाइड किया था तो हम सबको देते, जिसका नेगेटिव होता है उसको भी देते, जिसका पॉजिटिव होता है उसको तो देते ही है बैलेंस, जिसका नेगेटिव होता है उसको भी देते, बिकॉज रेशो नंबर है कैंसिल करने पे। बट यहाँ पे जब हम बैलेंस रेशो से दे रहे हैं तो इधर तो कुछ भी अमाउंट नहीं है, इसके वजह से हम कुछ भी नहीं दे पा रहे इसको, ताल्लुकदार को। तो चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ। मार्क्ड एप्लीकेशन है 20,000, 20,000 इंटू 10/70 कितना आ रहा है? 20,000 इंटू 10/70, 20,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 70 मुझे आ रहा है 2857.1। तो मैं सिर्फ इतना ले रही हूँ। फिर इसके बाद गिव इट टू सिंग 20,000 इंटू 23 डिवाइड बाई 70, 20,000 इंटू 23 डिवाइड बाई 70 इधर आ रहा है 6572 बराबर 0.4 है। तो इसको भी कुछ नहीं, नहीं 7-1 आया ना, 7-1, तो इसको 7-1 देंगे। इसके बाद व्हाट योर, इसको क्या देंगे मजूमदार को? 7 डिवाइड बाई 70, तो 20,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 20 इसको देंगे, कितना आ रहा है? 20 नहीं 70, 7 डिवाइड बाई 70 आंसर आ रहा है 2000। फिर 14,000 है, सॉरी कौन क्या रेशो है? पी प्राइस का 28 डिवाइड बाई 70, सो 20,000 इंटू 28 डिवाइड बाई 70 इसका कितना आया? 8,000 आया। इसका तो कुछ बैलेंस रेशो है ही नहीं, रेशो ही नहीं है। फिर लास्ट वाला दैट इज बैनर्जी को 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 70 कितना आया? 571.4, तो 571.4 इज 571। ये सबको ऐड करो, 2,000 प्लस 8,000 प्लस एक पॉइंट के वजह से ना, एक पॉइंट के वजह से डिफरेंस आ रहा है, एक पॉइंट, और हम लोग वो नहीं कर सकते रिसर्च शेयर्स, तो सबको इक्वल देना चाहिए। तो किधर हम एक डिजिट कम ज़्यादा कर सकते हैं? यहाँ पे 72 कर देते, या तो इधर भी कर सकते हैं, दोनों जगह 0.4 था, तो हम क्या कर सकते हैं? या तो यहाँ पे 71 का 72 कर सकते हैं, या तो हम ये इधर भी 0.4 आया था, अगर हम ये 72 नहीं करेंगे ना तो ये पूरा ऐड करके 20,000 नहीं होगा, नहीं करते तो 19,999 होता है। तो मैंने यहाँ पे भी 1 ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे भी 1 ज्यादा कर सकते हैं, कोई एक जगह पे, दोनों जगह पे करेंगे तो ये 20,001 हो जाएगा, बट हमें शेयर तो सिर्फ 20,000 देना है। तो 0.4 इधर भी आया है और 0.4 इधर भी आया है, तो दोनों में से एक जगह पे एक डिजिट ज्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें 20,000 मिल जाएगा। तो इसके बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे नेट लाइबिलिटी। सो नेट लाइबिलिटी क्या है? 5,000 में से 2857 माइनस करो, 2143, 11,500 में 6572 माइनस करो, इट इज कमिंग 4928। ये 3,500 में से 2,000 माइनस करो, 14,000 में से 8,000 माइनस करो, इनको तो कुछ बैलेंस नहीं है देना, लाइबिलिटी नील है, जीरो है, और यहाँ पे 429 सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000। डन? any doubts here? With this what I will do, with this sum is done.
And I I would like to end the lecture here. Thank you very much, everyone. Chalo, let us do one more sum now. Chalo, this is the sum we will do now. Excel Limited issued 40,000 shares of rupees 10 each. These shares were, so for Excel Limited has 40,000 shares of 10 each. These shares were underwritten as follows. A अंडरराइटर ए 20,000 शेयर सेल करेगा, बी 12,000 शेयर. देर आर टू अंडरराइटर्स इन दिस क्वेश्चन. देर आर टू अंडरराइटर्स. द पब्लिक अप्लाइड फॉर 33,000 शेयर्स विच इंक्लूडेड मार्क्ड एप्लीकेशंस फ्रॉम द अंडरराइटर्स एज फॉलोज. ए का 5,000 एंड बी का 3,000. direct application received by the company were for 5,000. so यहाँ पे तीन हमें बताना है. एक तो A जो अंडर राइटर है, B इज द सेकेंड अंडर राइटर, थर्ड जो शेयर सेल करने के लिए who will act as अंडर राइटर, he will be the company जिनको डायरेक्ट एप्लीकेशन मिला है 5,000 शेयर्स के लिए. डिटरमाइन द नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर्स. So let us start this sum. हमें क्या करना? Unmarked applications are to be distributed among the underwriters in the ratio of their gross liability. तो हमें gross liability में unmarked applications को divide करना है. So यहाँ पे now let us, what we want, liability of underwriters. Liability of underwriters. So here we have company basis A, B, sorry, particular basis A, B and company. टोटल कॉलम नहीं बनाया अभी, तो तुम लोग के ऊपर, अगर तुम लोग को चाहिए तो टोटल कॉलम भी बना सकते हो. बेसिस. So particulars, basis, A is the one underwriter, B, and third one who will act as underwriter in this question is company. So gross liability, क्या दिया है gross liability? This is given 20,000, 12,000 एंड कितना बचता है 40,000 के लिए. तो यहाँ पे एक और कॉलम में बना देती हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए. जो हमने प्रीवियस सम में किया है, टू द राइट एक कॉलम ऐड कर देती हूँ, दैट इज टोटल. तो टोटल शेयर सेल करने के लिए 40,000. तो देखो कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, 20,000 and 12,000 is only 32,000. सो कंपनी को कितना शेयर सेल करना पड़ेगा? कंपनी को सेल करना पड़ेगा 8,000. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. एनी कंफ्यूजन हियर? 20,000 शेयर्स ए सेल करेगा, 12,000 शेयर्स बी अंडर राइटर बी सेल करेगा. तो थर्ड ऑटोमेटिकली फॉर द बैलेंस पार्ट कंपनी विल हैव टू सेल डायरेक्टली 8,000 शेयर्स. तो इसमें से हम क्या करेंगे? ये रेशो क्या हो जाता है? कितना जीरोस कॉमन है? 20:, 3 जीरोस कॉमन है ना, इज टू 40. 20:8:40. तो इसको और छोटा कर सकते हैं, ऐसे ही रख देते हैं. चाहिए तो हम इसको और छोटा भी कर सकते हैं, बट आई हैव केप्ट इट लाइक दिस ओनली. और छोटा करना है तो 2 के टेबल में 20 10 आता है. 8 इज, अरे हाँ सॉरी मैंने टोटल का भी रेशो निकाला है, सॉरी यार. तो यहाँ पे 20, 12 एंड 8 तीन ही तो है. तो इसको और छोटा करना है, तो और छोटा करेंगे तो किधर आएगा ये? 2 10, 2 6 एंड 2 4. तो इसको और छोटा भी कर सकते, 2 के टेबल में और छोटा कर सकते. 2 5 10, 2 3 6 एंड 2 2
4। एनी कंफ्यूजन ईयर? हमने क्या किया, ये 20, 12 और 8 को छोटा कर दिया इससे, और इससे इसके आगे कट नहीं होगा, तो दिस इज द लीस्ट वन, लीस्ट रेशो। कट करके हमने फाइनल रेशो में आ गए। अगर ये तुमको नहीं करना तो हम अवॉइड कर सकते हैं। सो अगर ऐसा इतना छोटा नहीं करना तो तुम लोग लिखो 20:12:8, 20:12:8, ऐसा भी रख सकते। सो नाउ हमें इसमें से लेस करना है मार्क्ड एप्लीकेशंस। सो मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना है, ये तो गिवन है ना मार्क्ड एप्लीकेशन। सो हाउ मच इज द मार्क्ड एप्लीकेशन? इट इज गिवन, ए का 5000, बी का 3000 एंड कंपनी का डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट एप्लीकेशन रिसीव बाय द कंपनी वेयर 5000। सो ऐड करो, कितना हो रहे हैं सबको, 13,000 मार्क्ड एप्लीकेशंस है। तो अभी जब लेस करेंगे तो इट विल बी बैलेंस। बैलेंस कितना आ रहा है? बैलेंस आ रहा है 15,000, इधर आ रहा है 9,000 और इधर आ रहा है 8 में से 5 गया 3,000। तो ये सबका टोटल कितना हो जाएगा? 27,000। तो इसमें से लेस करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन को कौन से रेशो में डिवाइड करने बोला है? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो में, रेशो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। देखो, अनमार्क्ड एप्लीकेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द अंडरराइटर इन द रेशो ऑफ द ग्रॉस लाइबिलिटी। सो जरा ग्रॉस लाइबिलिटी में अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? हाउ मच इज द अनमार्क्ड एप्लीकेशन? अनमार्क्ड एप्लीकेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन, दिया नहीं है ये सब में अनमार्क्ड एप्लीकेशन, माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। सो टोटल एप्लीकेशन कितना मिला है? टोटल एप्लीकेशन मिला है 33,000। सो टोटल एप्लीकेशन इज 33,000 और उसमें से हमें मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना मिला है? 13,000। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टोटल है मार्क्ड एप्लीकेशन का 13,000। सो अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज 20,000। सो ये 20,000 को ग्रॉस लाइबिलिटी में डिवाइड करो, 5:3:2। यानी कंफ्यूजन ईयर, टोटल एप्लीकेशन पब्लिक से मिला 33,000, उसमें से मार्क एप्लीकेशन का टोटल हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, वो माइनस किया तो हमें मिला अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज 20,000। 5:3:2 में डिवाइड करो, 20,000 into 5/10, 20,000 into 3/10, 20,000 into 2/10. How much you're getting? 10,000। यहाँ पे कितना मिला? 3/10, 6,000। यहाँ पे कितना मिला? 4,000। पूरा ऐड करेंगे तो इट विल बी 20,000। सो अभी हमें बैलेंस फिर से मिलेगा। ये क्यों बैलेंस मिलेगा पता है? एक देखो इधर नेगेटिव होने वाला है, इसलिए मैंने फिर से बैलेंस लिखा, नेट लाइबिलिटी नहीं लिखा। तो 5,000 आया, इधर कितना आया? 3,000, 9,000 माइनस 6,000 और इधर आया -1,000, इसलिए मैंने इधर लिखा। इसको करेंगे ऐड तो ये आ जाएगा 7,000। सो ऐड करो, 27 minus 20 is also 20,000, सॉरी 27,000 minus 20,000 is 7,000 और ये तीनों को भी ऐड करेंगे तो 7,000 मिलेगा। अभी हमें किसका एक क्रेडिट एडजस्ट करना है ना, लेस क्रेडिट एडजस्टेड, लेस क्रेडिट एडजस्टेड। क्रेडिट एडजस्ट करो कौन से रेशो में? 5:3, बिकॉज कंपनी का 2 है,
तो ये रेशियो में एडजस्ट करो, कितना आ रहा है, 1000 इंटू 5/8, 625 आया, 1000 इंटू 3/8, 375 आया, और यहाँ पे आएगा 1000, तो ये हो जाएगा 0। कैसे, +1000 -1000, 625 प्लस 375 1000, तो -1000 प्लस 1000 इज 0 या नील। फिर हमें जो मिलेगा दैट विल बी द नेट लाइबिलिटी। कितना होगा, 5000 से 625 माइनस करो, वी गेट 4375। ये 3000 से 375 माइनस करो, वी गेट 62625। यहाँ पे 0, कंपनी का कोई लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी को खुद से कोई शेयर खरीदने का जरूरत नहीं है, और ये है 7000 विच इज द लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी। ए को इतना शेयर खरीदना पड़ेगा 4375, और बी को कितना शेयर डिवॉल्व हो रहा है, नेट लाइबिलिटी क्या है 2625। विद दिस सम इज डन, दिस सम इज ऑल्सो डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।